Welcome students, we were discussing 15th chapter hydrocarbons, okay, and we have discussed about alkenes and alkynes, and from this video we will discuss about aromatic hydrocarbons, okay, cyclic hydrocarbons, and principally we will discuss about benzene molecule, okay। अब ये जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनके हम दो पार्ट्स करेंगे, ओके, थियोरी पार्ट, रिएक्शन पार्ट, ओके। सो इन थियोरी वी विल डिस्कस अबाउट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ओके, aromatic hydrocarbons, then the structural properties of those aromatic hydrocarbons, okay, then functions, their sources, their importance, etc., okay, and the particular phenomenon shown by those aromatic hydrocarbons, okay, and we will discuss about the specialized characteristic shown by those aromatic hydrocarbons, that is the functional influence of the different structures on that particular cyclic structure, okay। तो हम एक काम करेंगे, हम ये जो थियोरी वाला पार्ट है इसका एक अलग से वीडियो डालेंगे, एक अलग से वीडियो प्रिपेयर करेंगे, एंड इन दिस पर्टिकुलर वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शन पार्ट। So you know what is the reaction part? So reaction part is nothing but the preparatory reactions and synthesis reactions, okay। So आपको पता होगा कि हम preparation and synthesis reaction का study कैसे करते हैं। So in the same way we will discuss about the preparatory and synthesis reaction. So let's start, okay। So first of all we will discuss about the preparatory reaction. So before we start, as this is first video, we will just discuss कि बेंजीन मॉलिक्यूल और ये साइक्लिक मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ओके। तो थियोरी पार्ट में हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे, पर इसमें एक शॉर्ट में लेते हैं। सो देखो, आपके पास एक ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है अल्केन्स का, ओके, और एक क्लोज चेन और साइक्लिक स्ट्रक्चर होता है। सो उसमें क्या होता है कि आप उसमें कॉन्जुगेटिंग सिस्टम प्रेजेंट होती है। सो इफ़ यू हैव 6 कार्बन्स, ओके, सो 1 2 3 4 5 and 6, okay। So if you have 6 carbons, the internal bonding which is present in between them, okay, and alternate single and double bond is present. So alternate single and double bond will be present in between those carbon atoms, and this valency will be satisfied by either hydrogens or any other functional group, okay। So this is nothing but your benzene molecule. So molecular formula is nothing but C6H6, okay। So there are various ways to prepare this benzene molecule, okay। So this is known as, this has the particular sooty flame, okay, particular sooty flame, and this flame, okay, and their particular aroma, so this particular smell, okay, is known as this smell is also known as the, sooty smell, okay, sooty smell, and that's why this particular smell, this is known as aromatic compound, okay। So what's the thing कि जो आपके जो जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उसमें प्रिंसिपली दिस बेंजीन मॉलिक्यूल ही प्रेजेंट होता है, ओके। इसमें बेंजीन मॉलिक्यूल जैसे हम अल्केन्स का देखते हैं कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, ये पेरेंट कंपाउंड है, वैसे एरोमेटिक कंपाउंड्स में ये जो बेंजीन मॉलिक्यूल होता है ये बहुत सारे कंपाउंड्स का पेरेंट मॉलिक्यूल होता है, ओके। सो इसका स्टडी करना हमारे लिए इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इसका प्रिपरेशन कैसे करते हैं ये हम देखेंगे, ओके। बाकी का पार्ट हम इसमें थियोरी वाले पार्ट में देखते हैं, ओके। सो फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन, शॉर्ट रिएक्शंस आर दिस, ओके, एकदम कम रिएक्शन है, 3 या 4 रिएक्शन है सिर्फ। सो वी विल डिस्कस अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन, ओके। सो हाउ दिस बेंजीन मॉलिक्यूल्स आर prepared by different molecules. So हमें पता है सेंटर में एक बेंजीन ड्रॉ करो, ओके। सो ये जो बेंजीन है ये अगर आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, नहीं तो आप कैसे ड्रॉ कर सकते हो, आप
ऐसे अल्टरनेट बॉन्डिंग से भी इसको ड्रॉ कर सकते हो। ओके, अब इसमें आपको ऐसे ड्रॉ करना है या वो सर्कल वाला क्यों ड्रॉ करना है, तो ये हम थियोरी वाले वीडियो में देखेंगे। ओके, बेंजीन की जो थियोरी है उसमें हम देखेंगे। सो दिस इज़ नथिंग बट योर बेंजीन मॉलिक्यूल। इसको एक बड़ा सा स्क्वायर कर देते हैं। ओके, अब इसको प्रिपेयर कैसे करना है। ओके, सो व्हाट्स द डिफरेंट फिनोमेनॉन टू प्रिपेयर दिस बेंजीन। ओके, सो विल डिस्कस दैट। सो सबसे पहले उसका एक सिंपल प्रिपरेशन किया जाता है एसिटिलीन मॉलिक्यूल से। ओके, एसिटिलीन जिसे कहते हैं इथिलीन, जो 3 इथिलीन मॉलिक्यूल एक दूसरे के साथ बॉन्ड उसका बनाया जाता है और ट्राइमराइजेशन रिएक्शन से इसका फॉर्मेशन होता है। सो वो रिएक्शन हम सबसे पहले देखेंगे। सो ड्रॉ 3 इथिलीन मॉलिक्यूल्स। ओके, सो 3 मॉलिक्यूल्स ड्रॉ कीजिए, इथिलीन मॉलिक्यूल्स। ओके, सो नाउ दीज आर 3 इथिलीन मॉलिक्यूल्स। सो इसमें बॉन्डिंग देखो कैसे होता है। सो कुछ इस तरह से इसका आपको बॉन्डिंग दिखाई देगा। ओके, और इसमें जब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये एक रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब पास किए जाएंगे, सो रेड हॉट आयरन ट्यूब से जब ये पास किए जाएंगे, ओके, एट 873 केल्विन। ओके, तो एक ट्राइमराइजेशन रिएक्शन आपको दिखने को मिलेगी। ओके, एंड आपका बेंजीन मॉलिक्यूल फॉर्म होगा। आपका बेंजीन मॉलिक्यूल इस तरह से फॉर्म होगा। ओके, दूसरी रिएक्शन देखते हैं। ओके, इस दूसरे रिएक्शन में आपको फिनॉल से, फिनॉल पता है आपको किसे फिनॉल कहते हैं, तो ये जो फिनॉल है तो इस फिनॉल से आपको बेंजीन बनाना है। इसमें जब जिंक ऐड किया जाता है तो बेंजीन बनता है और इसमें एक बाई प्रोडक्ट भी होता है इसका, और वो होता है ZnO। ओके, तो इस तरह के रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन है इसे कहा जाता है रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। सो रिडक्शन टाइप ऑफ रिएक्शन। नाउ थर्ड रिएक्शन में क्या किया जाता है। ओके, इसमें ये रिएक्टेंट यूज किया जाता है विथ हीट। ओके, so observe carefully what are the reactants। so बहुत बड़े बड़े रिएक्शंस हैं आपके पास, तो उसको अगर आप ऐसे समराइज करते हो तो आपके लिए ये पर्टिकुलर जो कुछ भी रिएक्शन वाला पार्ट है जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है वो आप इजी बना सकोगे। ठीक है, सो दिस इज़ द थर्ड टाइप ऑफ रिएक्शन एंड आपको पता है क्या चल रहा है यहाँ पे। सो आप नाम दे सकते हो उसको डिकार्बोक्सिलेशन। कार्बोक्सिल ग्रुप यहाँ पे रिमूव हुआ है। ओके, सो दीज आर दी 3 वेज टू प्रिपेयर बेंजीन मॉलिक्यूल फ्रॉम डिफरेंट स्टार्टिंग रिएक्टेंट्स। ओके, अब इसके कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ देखेंगे। ओके, सो व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन। ओके, हमेशा प्रिपरेशन के बाद उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बोला जाता है। सो व्हाट आर दी फिजिकल प्रॉपर्टीज़। तो ये भी एक्चुअली सिंपल होता है, पर एग्ज़ाम में अगर आपकी रिवीजन नहीं है तो आपको ये सिंपल बात भी याद नहीं आ जाती। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप दिस इन माइंड। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल बेंजीन इज़ कलरलेस लिक्विड। ओके, बेंजीन जो होता है वो कलरलेस लिक्विड होता है। ओके, सो इसके बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ध्यान में रखो। ओके, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट कहाँ गया है वो है 353 केल्विन। ओके,
और उसका जो मेल्टिंग पॉइंट कहाँ गया। अब आप सोचोगे बॉइलिंग पॉइंट भी और मेल्टिंग पॉइंट भी, ये दोनों कैसे पॉसिबल है। सो इन सम केसेस व्हेन सर्टन फंक्शनल ग्रुप्स आर एडेड टू बेंजीन, बेंजीन इज प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, सो दैट्स वाई मेल्टिंग पॉइंट इज मेंशन। सो इसका मेल्टिंग पॉइंट है 278.5 केल्विन। ओके, नाउ थर्ड प्रॉपर्टी इसकी देखो। सो एज एक्सपेक्टेड, आप एक्सपेक्ट करोगे इसके जो कुछ भी फंक्शंस है उससे कि दिस इज इनसोल्यूबल इन वाटर। ओके, इनसोल्यूबल इन वाटर। सो व्हाट डज दैट मीन कि अगर ये वाटर में इनसोल्यूबल है तो इट मस्ट बी सोल्यूबल ओके इन सॉल्वेंट्स, लेस पोलर सॉल्वेंट्स लाइक ईथर, ओके, देन you can say chloroform, okay, alcohol, etc. Okay, so this is the third property. And what is the fourth property कि इसके जो वेपर्स है, बेंजीन के जो वेपर्स होते हैं, तो बेंजीन वेपर्स कहाँ जाता है उनको, सो दे आर बेंजीन वेपर्स, दे आर हाईली टॉक्सिक, ठीक है, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं वो। सो दे आर हाईली टॉक्सिक एंड दे कॉज अनकॉन्शियसनेस इन योर बॉडी। आपको समझ में नहीं आता कि आपके सराउंडिंग में क्या चल रहा है। सो आपके रिफ्लेक्सेस उससे स्लो हो जाते हैं, ठीक है, आप समझ नहीं पाते, डिसीजन मेकिंग पावर कम हो जाती है एंड दिस अल्टीमेटली लीड्स टू दी कैंसर एंड आफ्टर दैट डेथ। ओके, सो सर्टन उसे कहा जाता है कि क्रॉनिक कोमा, ये भी बेंजीन वेपर से होता है। सो दैट्स वाई बेंजीन के जो कुछ भी रिएक्शंस होते हैं उनको बहुत ही ज़्यादा केयरफुली करना पड़ता है, ठीक है, एकदम आराम से। सारे जो सेफ्टी इक्विपमेंट्स होते हैं, सेफ्टी अपरेटस या जो कुछ भी अपीयरेंसेस होते हैं, मतलब ग्लोव्स होते हैं एक तरह के, एप्रन होते हैं, ओके, शील्ड होती है फेस पे, तो ये सारे इक्विपमेंट्स या सारी खबरदारी लेके बेंजीन के रिएक्शंस किए जाते हैं। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट ओनली 3 reactions are there and they are very easy reactions. Okay, so only 3 reactions are there to prepare the benzene molecule. Okay, so now we will discuss about the chemical composition or we can say chemical reactions of benzene. तो यहाँ पे 3 ही reactions है ना, तो chemical reactions में पूरा उसका बदला लिया है, क्योंकि chemical reaction में 10 या 12 we will see how many reactions are there, तो इतने सारे reactions उसमें हैं, so we will see how we can manage them. Okay, so I hope this is clear to you. Okay, अरे ये मैंने वाकई में रफ़ किया, चलो कोई बात नहीं, ये रफ़ करेंगे नहीं तो भी चलेगा। ओके, तो कर ही देते हैं क्योंकि बड़ा हमें उसको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत रिएक्शंस है उसके लिए। सो प्रिपरेशन हो गया। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दी केमिकल प्रॉपर्टीज़। सो ऑलवेज रिमेंबर दैट इन chemical properties you discuss about the different chemical responses shown by that particular molecule in presence of different reagents. Okay, okay, so again हमें बहुत ज़्यादा इसके लिए जगह भी लगने वाली है। so बेंजीन ड्रॉ करो अच्छे से। आप एक बड़े से ड्राइंग पेपर पे ये रिएक्शंस के फ्लो चार्ट बना सकते हैं। ओके, सो नाउ वी विल सी कि ये जो केमिकल रिएक्शंस है वो कैसे बनाते हैं। ओके, सो रिएक्शन को नंबर भी देख सकते हो आप, और इसमें जो कुछ भी सूटेबल रिएजेंट्स बताए हैं वो भी आप लिख सकते हो। ओके, सो नाउ जस्ट सी दैट इसमें फर्स्ट रिएक्शन जो है इजी रिएक्शन है। ओके, उसके बारे में सबसे पहले बात करते हैं। दैट इज़ द रिएक्शन विथ सो इसमें यूवी लाइट यूज़ किया जाता है। ओके, और
उसके साथ में क्लोरीन मॉलिक्यूल यूज़ किया जाता है, यूवी लाइट अलॉन्ग विथ क्लोरीन मॉलिक्यूल, ओके। और फिर आपको एक कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर मिलता है, 6 कार्बन्स ड्रॉ करो, एक आपको स्ट्रक्चर मिलेगा यहाँ पे, राइट। अब हम हर एक कार्बन को 2 जगह पे एरोज ड्रॉ करो जहाँ पे आप ग्रुप्स अटैच कर सकते हो। तो आपको एक जगह पे क्या करना है, हाइड्रोजन अटैच करना है, और दूसरी जगह पे आपको क्लोरीन मोइटी अटैच करनी है, ओके। सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर यू विल गेट, ओके, एंड दिस इज नोन एज BHC, ओके, BHC। तो आपको इसका फुल फॉर्म ढूंढना है, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ दिस BHC। और इसका जो कुछ भी मैं यहाँ पे लिख के रखती हूँ, इसका जो गैमा आइसोमर होता है ना, इस कंपाउंड का जो गैमा आइसोमर होता है, तो इसका यूज़ होता है एज इंसेक्टिसाइड, ओके, इसका यूज़ होता है एज इंसेक्टिसाइड, ओके। दूसरी रिएक्शन लेते हैं। सो ये जो जगह जाएगी इसकी, तो हम थोड़ा सा यहाँ पे लिखते हैं, जगह बचानी है हमें क्योंकि, ओके। सो दूसरी रिएक्शन देखो, इसकी रिएक्शन जब आप निकेल के साथ करते हो, इसकी रिएक्शन जब आप निकेल के साथ करते हो, एट विच टेम्परेचर, एक टेम्परेचर की रेंज दी है उन्होंने, ओके। सो विच इज़ दैट रेंज, 453 टू 473 केल्विन। इस टेम्परेचर के पास जब आप रिएक्शन करते हो विथ 3 हाइड्रोजन्स, तो आपको स्ट्रक्चर मिलेगा, और आपको ये स्ट्रक्चर बहुत ही अच्छे से पता है, व्हाट इज़ दैट, दिस इज़ नथिंग बट साइक्लोहेक्सेन, ओके। सो दिस इज़ द सेकंड रिएक्शन, ओके। देन यहाँ पे और एक रिएक्शन है, देखो कि जब आप ओजोन के साथ इसकी रिएक्शन करते हो, इसको आपको पता है, इसको क्या कहते हैं, इसको ओजोनेशन कहते हैं। सो जब ओजोन के साथ इसकी रिएक्शन करते हो, तो इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ध्यान से देखो, इस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बहुत ही ध्यान से देखो, और कैसे ड्रॉ करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, ओके। सो ड्रॉ विथ मी कार्बन। सो यहाँ पे आपको ऑक्सीजन्स ऐड कर रहे हैं, मतलब 3 ऑक्सीजन है और 1 कार्बन है, ओके। ऐसा स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करना है, ओके। अब यहाँ पे इसका ओरिएंटेशन थोड़ा सा टिल्ट कर दो, थोड़ा सा टिल्ट करना है इसे। और कैसे ड्रॉ करना, देखो कार्बन, ओके। सो कैसे ड्रॉ किया है, देखा, थोड़ा सा हमने इसको टिल्ट किया है, ओके। और यहाँ भी थोड़ा सा टिल्ट कर दो इसको, आपको समझ में आएगा कि हमने ऐसा क्यों किया है, ओके। सो यू हैव दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। अब आपको जॉइन करने हैं, देखो कैसे जॉइन कर रहे हैं हम, उसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दो, ओके। इन कार्बन्स को जॉइन कर दिया, और यहाँ पे सिर्फ जो बचे हुए कार्बन्स हैं वहाँ पे एक एक हाइड्रोजन मोइटी ऐड कर दो, ठीक है। एक एक आपको वहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना है, ओके। सो इसका नाम है, ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड है इसका नाम है बेंजीन। थोड़ा सा इसको खुले में लिखते हैं। सो बेंजीन, और कितने ओजोन मॉलिक्यूल्स हमने इसके लिए यूज़ किए, 3। तो ट्राई ओजोनॉइड, बेंजीन ट्राई ओजोनॉइड, ओके। ओ भी नहीं है, सिर्फ एन ही है, ओके। अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसके रिएक्शन जब आप जिंक एंड प्रोटोनेशन जब आप इसका करते हो, तो फिर आपको वहाँ पे
कुछ ऐसे मॉलिक्यूल मिलेगा, देखो, प्लस आपको मिलेगा यहाँ पे पेरोक्साइड, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ पेरोक्साइड यू विल गेट। ओके, अब और एक रिएक्शन है, देखो, when you react this particular benzene in presence of iron, okay, in presence of iron in dark, so you can say, you can write iron in dark conditions, okay, और क्लोरीन के साथ जब आप इसके रिएक्शन करते हो तो आपको क्लोरोबेंजीन मिलेगा, you will get chlorobenzene along with HCl. Okay, this is known as nothing but chlorination. Okay, you know that. अब same is the reaction with ब्रोमोबेंजीन। थोड़ा सा ब्रोमोबेंजीन की रिएक्शन देख लेते हैं। सो क्या है वो रिएक्शन? इसके लिए आपको FeBr3 एंड ब्रोमीन अलग से, ओके, दीज आर योर रिएक्टेंट्स। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? नथिंग बट ब्रोमोबेंजीन, ओके, अलॉन्ग विथ HBr। सो दिस इज नथिंग बट दी ब्रोमिनेशन, आपको ये पता है। अब यहाँ पे एक थोड़ा सा वी कैन से पैरा सब्सटीट्यूटेड और मल्टी सब्सटीट्यूटेड बेंजीन कैसे मिलता है आपको, वो देखो। ओके, मल्टी सब्सटीट्यूटेड बेंजीन आपको कैसे मिलेगा? तो उसके लिए आपके पास रिएक्टेंट्स होने चाहिए, ऐसे लिखते हैं, चलो, अनहाइड्रस AlCl3 इसके लिए रिएक्टेंट है, ओके, एंड इन प्रेजेंस ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन, ओके, आपको 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ क्लोरीन यूज़ करने हैं और आपको एक कंपाउंड मिलेगा और वो पूरा सब्स्टिट्यूटेड होगा, ओके, पूरा का पूरा वो सब्स्टिट्यूटेड होगा। इजी रिएक्शन से वैसे अगर बहुत ज़्यादा भी है फिर भी वो इजी है, इतना डिफ़िकल्ट उसमें है नहीं, ठीक है। तो ये आपको उसमें क्या मिलेगा? स्ट्रक्चर मिलेगा, ठीक है। अब इससे ही एक सिमिलर रिएक्शन देखते हैं। एक सिमिलर रिएक्शन है, तो उसमें आपको क्या करना है, यूज़ क्या करना है? उसके लिए आपको यूज़ करना है कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एज रिएक्टेंट, ओके, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 आपको यूज़ करना है अलॉन्ग विथ हीट, ओके, और नाइट्रिक एसिड से उसको आपको रिएक्ट करना है और आपके बेंजीन के जितने भी हाइड्रोजन्स हैं तो उसके पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा, ओके, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो ग्रुप आ जाएगा और बाकी के जो कुछ भी हैं वहाँ पे आपके नॉर्मल हाइड्रोजन्स ही रहेंगे। सो दिस इज़ नथिंग बट योर नाइट्रोबेंजीन, okay, so this reaction is known as nitration, okay, nitrobenzene, okay, so understand this reaction। अब और एक रिएक्शन है, देखो, इसमें आपको क्या करना है कि सिंपल एक कंबस्शन रिएक्शन आपको बता देती हूँ, इजी रिएक्शन है इसलिए, ओके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 15/2 O2 इसके साथ आपको उसको रिएक्ट करना है, तो आपको मिलेगा 6 CO2 प्लस 3 H2O, ओके। अब इस रिएक्शन को एक स्टार मार्क लगा देते हैं, ओके, और यहाँ पे मैं आपको वो एक्सप्लेन करती हूँ कि इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, ओके। इसके लिए एक स्पेशल फॉर्मूला यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ दैट फॉर्मूला? ओके, so that formula is C6H5, ओके, ऐसा एक फॉर्मूला है, प्लस X प्लस Y/4, ओके, O2, and this will give you X number of CO2 plus Y/2 H2O,
तो यहाँ पे ये 15/2 कैसे आया, तो ये रिएक्शन यहाँ पे सबमिट कर देखो क्या आएगा देखो, तो दिस इज नथिंग बट द कंबशन टाइप ऑफ रिएक्शन, दिस इज नथिंग बट योर कंबशन टाइप ऑफ रिएक्शन। ओके, अब यहाँ पे हमें और एक रिएक्शन देखनी है, देखो सब्स्टिट्यूशन कैसे होता है बेंजीन का वो देखो। तो यहाँ पे आपका जो बेंजीन है तो आपको AlCl3 जो है अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड जो होता है तो उसके साथ रिएक्शन करनी है। ओके, एट 373 केल्विन। ओके, और उसके साथ आपको यूज़ करना है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, जिसमें बहुत ज़्यादा फ्यूम्स है, जैसे फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड, और उसी के ही साथ आपको यूज़ करना है, मतलब यहाँ इसका सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा ये बताने के लिए इसको ऐसे डिवाइड कर दो। ओके, और आपको क्या आता है वो देखो, आपके पास एक बेंजीन मॉलिक्यूल होगा, सो दिस इज नथिंग बट योर सल्फोनिक एसिड, एंड इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं सल्फोनेशन। ओके, इसे कहेंगे सल्फोनेशन, राइट। अब हमारे लिए दो रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, फ्रीडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन एंड फ्रीडल-क्राफ्ट एसिलेशन। ओके, सो ये दो रिएक्शंस यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो अल्किलेशन मतलब क्या, अल्किल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा, एंड एसिलेशन मतलब एसिल ग्रुप इंट्रोड्यूस होगा। ओके, तो वो दो रिएक्शंस हम थोड़े से देखते हैं। ओके, सो उसके लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए आपको सिंपली मिथिल क्लोराइड मॉलिक्यूल आप यूज़ करेंगे, और उसके साथ आप यूज़ करेंगे अनहाइड्रस AlCl3 एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आपको सिंपली मिथिल बेंजीन, या उसे कॉमन लैंग्वेज में कहा जाता है टोल्यून मॉलिक्यूल आपको मिलेगा। ओके, अलोंग विथ क्लोरीन। ओके, अब ये हो गई एल्किलेशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्किलेशन रिएक्शन। अब असाइलेशन कैसे करते हैं वो देखते हैं। ओके, असाइलेशन के एक्चुअली दो रिएक्शंस है, डिफरेंट रिएक्टेंट्स यूज़ करके देखते हैं हम कैसे यूज़ करेंगे वो। ओके, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए फिर से अनहाइड्रस AlCl3 विथ हीट आपको यूज़ करना है। ओके, और आप यहाँ पे ये रिएजेंट यूज़ करोगे, एसिटिल मॉलिक्यूल यूज़ करोगे वहाँ पे। ओके, तो फिर ये थोड़ा सा रफ कर देते हैं ताकि हमारे लिए जगह बन जाएगी। तो बेंजीन ग्रुप को फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड होगा, देखो ओके, प्लस HCl, और ये जो रिएक्शन है ये और एक टाइप का रिएजेंट यूज़ करके भी हम बना सकते हैं। ओके, एंड व्हाट इज़ दैट रिएजेंट, सो यहाँ पे आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा, ये सीधा लिखते हैं क्योंकि ये बहुत ही उल्टा हो जाएगा फिर, CH3 CO2O। ठीक है, ये रिएजेंट हमने यहाँ पे यूज़ किया है, एंड अनहाइड्रस AlCl3 ये यहाँ पे हमने यूज़ किया है, और फिर आपको वहाँ पे कंपोनेंट तो सेम मिलेगा। ओके, आपका जो कंपोनेंट है वो तो वहाँ पे सेम ही होगा, पर उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो एसिटिक एसिड होगा, उसका जो बाय प्रोडक्ट है वो एसिटिक एसिड यहाँ पे होगा। ओके, तो यहाँ पे कैटालिस्ट कौन से कुछ कैटालिस्ट हैं यहाँ पे कि जिनको एक स्पेसिफिक नाम है। ओके, तो
ये जो दो रिएक्शंस है ना यहाँ पे, इनको कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन और इसको कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन। तो रिएक्शंस काउंट करो, कितने रिएक्शंस हो गए यहाँ पे। सो दिस वन इज 1, दिस वन इज 2, 3, then 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 and 12. Okay, as I said 10-12 reactions are there. इन दोनों को मिला के ओके ये दोनों नहीं, सॉरी ये दोनों नहीं, सिर्फ एक ही जो रिएक्शन है ये वाली। ओके ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्किलेशन। ओके और ये जो दो रिएक्शंस हैं यहाँ की, ओके 11th and 12th, ओके इन दोनों रिएक्शंस को कहा जाता है दीज आर फ्रीडल क्राफ्ट एसिलेशन टाइप ऑफ रिएक्शंस। ओके सो बेंजीन के सारे केमिकल रिएक्शंस आपके सामने हैं। ओके सो स्टडी दिस रिएक्शंस वेल। ओके एक एक रिएक्शन आप सेपरेटली भी लिख सकते हो। इसमें फ्री रेडिकल का मैकेनिज्म भी आता है। ओके बिकॉज दिस बेंजीन हैज़ टेंडेंसी टू गो अंडर रेजोनेंस। ओके तो इसमें फ्री रेडिकल्स भी फॉर्म होते हैं। तो सम रिएक्शंस आर देयर लाइक दिस ब्रोमिनेशन, क्लोरीनेशन, इसमें आपको फ्री रेडिकल्स दिखने को मिलेंगे। तो उनकी रिएक्शन जो है ये हमारा पहले हो चुका है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, तो आप वो समझ सकोगे। सो डिफ़िकल्ट पार्ट जो है वो मैंने यहाँ पे कवर किया है। ओके सो नाउ दिस इज़ प्योरली रिएक्शन पार्ट। ओके इन नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट द थ्योरेटिकल पार्ट। ओके सो थियोरी में कैसे आपको इसमें काम करना है और थ्योरेटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, उसके फंक्शन कैसे है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है। सो ऑल दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन आवर थियरी। ओके सो सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टडी these reactions well, and if you have any doubt then please feel free to ask me anytime. Okay see you, goodbye.